All right, everybody. So that day, Alhamdulillah, we started the specimen paper of O levels, which was non-calculator paper, and we were almost done. हम लोग तकरीबन ये सारा पेपर कर चुके थे. All we have is few questions left. So you can see that question number 17 says that at the time some students take to travel to school one morning are shown in the table, and the time is recorded in minutes. So the data is continuous. Frequency is available, but one of the frequency is missing. On the grid, complete the histogram to represent this information. You should know that histogram is having a frequency density. So frequency density is equals to frequency divided by class interval. Those who do not have any idea about frequency density, so beta frequency density is technically the height of the pillar in a histogram. Okay, so I have FD available for some of the columns. You can see that this is 5 and 10. 5 to 10, the frequency is 1.6. This is 1.6. So I can write 5 to 10, it is 1.6. So I can find out the value of X, because you can see one thing, that the class intervals are always what? Class intervals are last minus first. आपने last में से first को minus करना होता है. So 10 minus 5 is 5. So class interval here is 5. Here is 10. 25 minus 20 is also 5. 30 minus 25 is 5. And 60 minus 30 is 30. Okay, now let's find out X first. हमें X निकालना है पहले. That is what the requirement of the question is. So हम पहले X को find out कर लेंगे frequency को. So FD is equals to frequency. So frequency is X. तो FD कितनी है हमारे पास बेटा? Ramin, it is 1.6. Frequency is X and the class interval is 5. So 1.6 times 5. तो 1.6 times 5 कितना होगा बेटा? 1.6 times 10 is 16. So 1.6 times 5 would be 8, half. So that would be half, 8. तो X की value आ गई 8. ठीक है Ramin, understood? जी सर. On the grid, complete the histogram to represent this information. So let's do that. So now we have to find out the FD for the second pillar. So it would be 16 by 10, which would also be 1.6. Agree? Then Sir, 20. जी बेटा. Yes. कौन सा पेपर है? मेरा बेटा ये वो जो हम लोगों ने उस दिन स्पेसिमेन पेपर स्टार्ट किया था ना, ओ लेवल्स का, ओके ठीक उसका है. क्वेश्चन नंबर 17 है. 1-2 सवाल रहते थे. जैसे ही खत्म होगा तो हम कल वाला स्टार्ट कर देंगे. अली वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अच्छा जी. देन 29 डिवाइड बाय 5. अब विदाउट कैलकुलेटर 29 डिवाइड बाय 5 करने का तरीका क्या है? आयला नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2. 29 डबल इज 58 डिवाइड बाय 10, सो इट इज 5.8. सो दिस इज 5.8. अच्छा, दिस इज 5.8. मैंने गलती से वहाँ पे लिख दिया. ये 5.8 यहाँ पे आएगा. ठीक है जी. अच्छा जी. नेक्स्ट वी हैव इज 20 बाई 5. 20 बाई 5 इज ईजी. तयबा ये 4 आता है. और मेरा बेटा फिर आएगा फ्रीक्वेंसी बाय तो 1/2. तो 1/2 इज 0.5. चले जी, सबकी एफ हमें मिल चुके हैं. तो एफ हमें मिल चुके हैं, तो एफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे. 5 to 10 जो है वो ऑलरेडी प्लॉट है. सो तयबा 10 to 20 जो है वो हमारे पास कितना है? 10 to 20 इज 1.6 एज वेल. तो 10 to 20 इज ऑल्सो 1.6. तो 10 to 20 1.6 एक पिलर बना देंगे बिल्कुल इसके साथ ही. Okay, next is 20 to 25 is 5.8. तो 5.8 हमें सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा. तो 5.8 is right here. So with the help of ruler, तो you will mark that point here. तो 20 to, it is from 20 to 25. तो 20 to 25. मार्क नहीं किया आपने? सर ये तो 4.8 है. क्या चीज बेटा? सर आपने 4.8 मार्क किया 5.8 की जगह. Oh yeah, thank you बेटा, thank you so much. 5.8 is ये 5 6 से 2 boxes नीचे. This is 5.8. तो this is for 5.8. तो यहाँ से हम पिलर उठा लेंगे यहाँ तक. अब ये कह रहा था तो ये बात 20 to 25. तो 25 यहाँ पर है. तो रूलर से बेटा पिलर बनाते हैं, बाय हैंड आपने नहीं बनाने. ठीक है, आपने बिल्कुल रूलर से पिलर बनाने हैं प्यारे प्यारे, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें. ये इसमें नंबर कटते नहीं हैं, तो पूरे नंबर आते हैं आपके. अच्छा, नेक्स्ट एज है बेटा 25 to 30 इज 4. तो अली ये देखो 4 बिल्कुल सामने ही है. तो इसके लिए तो रूलर कितनी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्किंग के लिए. हाँ, बनाने के लिए पड़ेगी, पिलर बनाने के लिए. ठीक है, फिर लास्ट वन देख लो बेटा. 30 to 60 इज 0.5. तो 30 to 60 जो है वो 0.5 है. तो 0.5 यहाँ पे होगा. ठीक है बेटा,
अली समझ आया मेरा बेटा? जी सर। अच्छा, ये पिलर बिल्कुल प्यारे प्यारे बनाने हैं पेपर के अंदर भी, और जो पिलर आपने बनाए हों उसको आपने सही तरीके से इस तरीके से स्केच कर देना है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। सॉरी मैं एक एक का सलाम जवाब नहीं दे सक रहा, मैं साथ साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं बाद में चैट पढ़ता हूँ। अच्छा जी, जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, ये वही पेपर है जो हमने उस दिन स्टार्ट किया था, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हमसे उस दिन रह गए थे हम लोग वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 3 मार्क्स के लिए। अच्छा, कहता है कि जमीला सेज दैट द हिस्टोग्राम शोज दैट देयर आर द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 to 10 ग्रुप as in the 10 to 20 group. Explain why she is wrong. Beta, you can see that 5 to 10 group has the same frequency density. Height of the pillar is same, but area of the pillar is different. Okay, so it is not same because 5 to 10 5 to 10 group 5 to 10 group has 5 people. और कितने थे? x की वैल्यू 8 आई थी, सॉरी, द वैल्यू ऑफ x इज 8। तो अली यहाँ पे कितने लोग हैं? 8 पीपल, एग्री। बट 10 to 20 वाला जो ग्रुप है बेटा, 10 to 20 वाला जो ग्रुप है, देखो यहाँ पे 16 लोग हैं। कितने? अस्सलाम वालेकुम सर। हैज 16 पीपल, 16 पीपल। वालेकुम अस्सलाम साइम, थैंक यू जी बेटा। तो ये ज़रा देख लें कि आखिर में इसकी रीजनिंग करनी थी, तो रीजनिंग में क्या करना था? वो कह रहे थे कि जमीला सेज दैट the histogram shows that there are the same number of students in the 5 to 10 group as in the 10 to 20 group। अब वो कहता है कि हिस्टोग्राम के इन दोनों पिलर्स की हाइट सेम है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ लोग हैं। नो, हिस्टोग्राम इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो याद रखें यहाँ पे पिलर की विड्थ वेरी करती है, द एरिया, इसका एरिया कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको जूम इन कर लूँ तो बेटा यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस रीजन इज ट्वाइस ऑफ दिस वन। तो हमें नजर आ गया था कि यहाँ पे 16 लोग हैं और यहाँ पे 8 हैं, ऊपर टेबल में हमने फाइंड किए हैं। जी क्लियर हो गया जी सबको क्वेश्चन? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, thank you. So proceeding. Okay, next question we had in a specimen paper, and you can experience a question like this in exam. Now you can see that the graph is given, and remember one thing, जब हम graph of function पढ़ रहे थे, so this is exponential graph। ये आपका exponential graph है। क्यों एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है बेटा? ये देखिए कि ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या नाम है आपका मेरा बेटा? तैयबा, बेटा आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से बढ़ती है, एग्री? इंक्रीज में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इंक्रीज में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बहुत फर्क है, ये चीज अंडरस्टैंड करें। इंक्रीज होती है बार बार लगने के ऊपर, बार बार परसेंटेज लेते रहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है कि एक एक कमोडिटी है आपके पास, लेट सपोज एक कमोडिटी है 100 रुपीज, 100 रुपीज का 10% इंक्रीज करूंगा एक साल तो वो 110 बनेगा, दूसरे साल में दोबारा 10 उसमें ऐड हो जाएगा तो वो 120 बनेगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात जाएगी तो हम लोग एक दफा लेंगे 10% ऑफ 100 विच वुड बी 10, so that answer would be 110 in at the end of first year। लेकिन जब सेकंड ईयर में 10% लगेगा तो 10% would be on 110, so it would be 121 then। तो सेकंड ईयर में 121 हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, वो इस तरीके से ग्रो करती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जो है ना, ये आपके पास एग्जांपल है। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल टू a पावर x। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। अब वो एग्जामिनर ने क्या कहा है नीचे, जरा आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द डायग्राम शोज अ स्केच of the graph which is y is equals to 3 multiplied by 2 power x plus 5। तो ये आपको उसने एक इक्वेशन दिया और इसमें उसने कहा है कि 2 पावर x एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जिसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया है और फिर 5 ऐड किया गया है। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, जस्ट एक मल्टीप्लायर है और एक एडिशन उसके साथ जो है ना वो बिजनेस में है, ठीक है? द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस एट पॉइंट a। Beta, when a graph crosses the y-axis, its x-coordinate is 0. Agree or not? Yes or no? Its x-coordinate is 0.
उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। सो पुट x कोऑर्डिनेट 0 ताकि आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आ जाए। तो आ जाएगा बेटा मेरे पास y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 2 पावर 0 प्लस 5। हमें पता है बेटा 2 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 2 पावर 0 क्या है बेटा, 2 पावर 0 इज 1 प्लस 5। 3 1 जार 3, 3 प्लस 5 इज 8, मतलब y की वैल्यू जो है 8 है और x की वैल्यू 0 है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 8 है y का। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। अगर एसिम्पटोट्स की बात अभी अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बेटा, ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये मैं आपके सामने वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ग्राफ को क्रॉस किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब मेरा बेटा यहाँ पे देखिएगा ज़रा प्लीज़, अब मैंने ये 1 लिखा। अब 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि साइन कि यहाँ पे अगर a पावर x होगा तो x की जगह पे मैं जब 0 पुट करूंगा तो वो 1 ही आएगा, चाहे a की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, इट डजेंट मैटर। एग्री और नॉट? जी सर। So the equation of the asymptote for such graph would be the x-axis. Agree? But here is not the case. Why? Because here the value is not 8. Here आपकी वैल्यू जो है वो 8 नहीं है। अब आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या है? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कहते हैं it is a type of line, which gets parallel to the graph but never touches the graph, जो कि ग्राफ के साथ पैरेलल हो जाएगी लेकिन ग्राफ को कभी टच नहीं करेगी। अब यहाँ पे जरूर देखें, दो तरीके के एसिम्पटोट्स होते हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप इस ग्राफ की शक्ल देखें तो तैयबा, क्या आपको कहीं से कहीं पे लिखा हुआ है नॉट टू स्केल? क्या इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है नॉट टू स्केल? नो सर। इसका मतलब है ये स्केल डायग्राम है, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनाई गई है, कोई नॉट टू स्केल का वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरा बेटा आयला, बेटा यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जिसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कहते हैं। ये लाइन जो है ये ग्राफ के साथ पैरेलल हो जाएगी लेकिन ग्राफ को कभी टच नहीं करेगी। अब वो कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट के लिए एग्जामिनर आपको कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, के इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट लिखें तो आपने हमेशा एक चीज करनी है, हमेशा आपने एक चीज करनी है। ये क्या करना है आपने? आपने, मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, अपने पास नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज इन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ऑलवेज इन एक्सपोनेंशियल ग्राफ a पावर x इक्वल टू 0, आपने हमेशा पुट करना है a पावर x को इक्वल टू 0। So what will happen here in this question? 2 power x is equals to 0. So Ali, y is equals to 3 multiply with 0 plus 5. 3 zeros are 0. तो 3 zeros are 0. 0 plus 5 कितना आता है बेटा? y is equals to 5 आता है। तो y is equals to 5 is the equation of asymptote. इसका मतलब क्या हुआ रामीन? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5 है। वो क्या है बेटा? 5। 5। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5 इज द लाइन जहां पे ये ग्राफ कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया बेटा जी सबको? क्लियर हो गया बेटा सबको? जी चले, दैट इज गुड। चले सर। आगे। हाँ, सर जी जी बेटा। ये रिपीट प्लीज, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा देखिए जी, पहले ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, ये न्यू पार्ट है सिलेबस का, तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ है। कहते हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट टू द ग्राफ। आपने हमेशा एक काम करना है, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, जब भी आपको पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो और आपके लिए एसिम्पटोट जो हैं वो 99% एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के लिए ही पूछी जाएंगी और या तो रिसिप्रोकल ग्राफ के लिए पूछी जाएंगी। वो केस भी आगे आएगा तो वो भी क्लियर करवा दूंगा आपको। एसिम्पटोट जो हैं वो यूजुअली एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल ग्राफ्स में बनती हैं। अब पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपके पास एक नॉर्मल सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो कि हमेशा 1 से पास होता है। तो वहां पे एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स एक्सेस, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू 0। लेकिन जहां पे ये ग्राफ 1 के बजाय किसी और नंबर को क्रॉस करे, यहाँ पे 8 को क्रॉस कर रहा है, वहां पे आपने हमेशा क्या करना है? आपने हमेशा a पावर x को 0 के इक्वल पुट करना है। इस क्वेश्चन में a पावर x जो था वो 2 पावर x है, तो मैंने क्या किया? 2 पावर x को 0 पुट किया, तो हम ना
3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 5, तो 3 0 0, 0 प्लस 5 इज 5। इसका मतलब है मुझे मिल गया कि y इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है जी, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड यस बेटा? सर। Yes, जी जी। ओके, चलें, दैट इज गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। हाँ जी, ये रह गया था हमारा एक क्वेश्चन। वो कहता है द डायग्राम शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस विद 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3, द माइनर एंगल इज 100। तो बेटा दिस एंगल इज हाउ मच? तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 100 विच इज x इज इक्वल टू 260। तो ये हमने खुद निकाल लिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर बेटा बड़ा वाला होता है, ठीक है? मेजर सेक्टर आपके पास ये वाला एरिया है, ठीक है अली? अब दिस इज व्हाट, दिस मेजर सेक्टर इज द पार्ट ऑफ सर्कल। तो आप लिखोगे 260 बाई 360 मल्टीप्लाई विद पाई एंड द रेडियस इज 3 स्क्वायर। पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज सेक्टर। तो 0 0 काट लें पहले। 26 बाई 36 मल्टीप्लाई विद 3 स्क्वायर इज 9 पाई। अब एग्जामिनर ने कहा है कि आपने पाई के अंदर ही आंसर देना है, तो पाई के अंदर ही देते हैं। तो बेटा 26 और 36 जो है इसका हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 36 का हाफ है बेटा 18 मल्टीप्लाई विद 9 पाई। बेटा 9 और 18 भी आपस में कटते हैं, तो 9 1 जार 9 एंड 9 2 जार 18। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 13 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो द आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि फ्रैक्शन में ही दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। 6.5 पाई भी लिख दो, लेकिन 13 बाय 2 पाई इज ऑल्सो फाइन, ठीक है जी, क्योंकि आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ पाई देना है जी। क्लियर हो गया जी सबको? ओके चलें जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने किया था। कहते हैं यूज योर आंसर एंड पार्ट ए टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। हाउ टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू प्रोसीड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टर्निंग पॉइंट, और आपने एज इट इज इसको इसी फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है? अब टर्निंग पॉइंट के लिए एक चीज याद रखिए, मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी इज द फॉर्मेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो आपके जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो नेगेटिव ए और पॉजिटिव बी होने चाहिए, और आपने पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को अब जब लिखते हैं, तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, बेटा यहाँ पे जरा और करें बेटा प्लीज सब। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा रामीन क्वेश्चन में आया हुआ है एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, नजर आ रहा है बेटा? जी सर। -28 आया है, एग्री और नॉट? जी सर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दैट इट शुड बी माइनस ए, इट शुड बी व्हाट? माइनस ए। तो बेटा क्या मुझे बताइएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट हियर, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सर 3। क्या लिखें जी? 3 3, ओके। और वाई एक्सिस पे क्या लिखें? -28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और -28, 3 और -28। अब यहाँ पे ये ज़रा देखें, ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड ज़रूर करें कि हमने इसको कंपेयर किया है, ठीक है? कि आपका जो ए की वैल्यू है वो माइनस ए में होनी चाहिए, लेकिन पहले आपने उसको इस फॉर्मेट में सेट करना ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा मैं क्या करता हूँ, तैयबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी ये सर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्केच करता हूँ, ठीक है? छोटे से स्केच में मुझे एक चीज का आइडिया हो रहा है कि अगर आपको ये इक्वेशन देखें, स्केचिंग इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 19, आई एम गोइंग टू स्केच दिस ग्राफ। मैं इस ग्राफ को स्केच करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टर्न द ग्राफ दिस वे। मैंने कुछ इस तरीके से इसको टर्न करना है। अब जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा, ओके? तो ये बात यहाँ पे द कोऑर्डिनेट हेयर इज 19। क्यों 19 है अली? वहां पे देखो वैल्यू ऑफ सी 19 है, -19 लिखी हुई है, एग्री? नाउ द टर्निंग पॉइंट जो है ना बेटा वो आपका यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है ना, देखो वो 3 आ रहा है, और y की वैल्यू 19 से भी छोटी होगी, तो वो होगा -28। तो ये हो गया बेटा आपका टर्निंग पॉइंट। 1 मार्क के लिए ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं। और आईजीसीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो तरीका आता है डेरिवेटिव के जरिए भी निकालने का, ठीक है? तो ये शॉर्टकट है। चलें जी आगे चलते हैं। ये हो गया जी हमारा पेपर कंप्लीट। हमारा पेपर कंप्लीट हुआ ओ लेवल्स का स्पेसिमेन। अभी हम चलते हैं जी आईजीसीएसई का स्पेसिमेन निकालने वाले। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास इसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, मैंने कल भिजवाया था, ठीक है? अच्छा जी, देखिए जी इंस्ट्रक्शन सारी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। 2 आवर्स का टाइम भी है, सब सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। बस 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं, बाकी कुछ भी इतना एज सच नहीं है। चलें जी लूप वाइज पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अभी बज रहे हैं 7:18, तो हम 7:18 पे स्टार्ट किया है। एग्जामिनर कहता है राइट 0.01 होल स्क्वायर।
तो 0.01 होल स्क्वायर करने से पहले मैं इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, ये 1/100 हो जाएगा। साइन 1 का स्क्वायर 1 और 100 का स्क्वायर इज 10,000। एग्री और नॉट? तो 1 डिवाइडेड बाई 10,000 का मतलब है, अभी देखिए मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 10,000 का क्या मतलब है कि पॉइंट विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट। एग्री? तो बेटा 1 इज हैविंग अ पॉइंट हियर, 4 जीरोस हैं तो 4 जंप्स ले लो टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 4, तो 0 0 0 और यहाँ पे आ गया पॉइंट। सो आंसर में आएगा 0.0001। ये हो गया जी 1 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, राइट दिस नंबर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इतनी जगह एग्जामिनर ने इसीलिए दिए कि ताकि बड़ा बड़ा करके नंबर को लिख लो, ठीक है। तो 57.3997 ब्लैक पेन से पेपर में लिख लिया। अब ब्लू से अंडरलाइन कर लेना, 4 सिग्निफिकेंट कौन सा है, ये 9 है। इस 9 के बाद क्या है बेटा, 9। बाद बच्चे इससे पीछे देखते हैं, इससे पीछे नहीं, इसके बाद वाला नंबर देखना है। तो 9 है तो इसमें प्रीवियस में 1 ऐड होगा, तो जब 9 में 1 ऐड करूंगा तो वो 10 बनेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ये 3 बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 57.40। तो ये हो गया बेटा 1 मार्क के लिए। और क्वेश्चन, अच्छा, एमी चेंजेस $250 इनटू डॉलर्स, 250 यूरोज इनटू डॉलर्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पेपर में करते हैं बच्चे, स्केल नहीं लिखते। आपने स्केल लिखना है। स्केल क्या है बेटा, यूरो इज इक्वल टू डॉलर, ऐसे लिखो, इंग्लिश में जगह दी है उसने कि 1 यूरो बराबर है 1.1 के। तो वो कहता है कि 250 यूरोज किसके बराबर हैं, तो लिखो एक्स के। डायरेक्ट ना कहो कि 250 मल्टीप्लाई विद 1.1, ये मत करें, गलती हो सकती है और ये ऐसे नंबर हैं जो ज़ाया हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है, 1x इज इक्वल टू 250 टाइम्स 1.1। साइन कैलकुलेटर ने ये पॉइंट को रिमूव कर लेना चाहिए। 250 मल्टीप्लाई विद 11/10, तो 0 0 काट लेंगे। तो अब हमारे लिए आसान हो गया 25 इंटू 11, और मैंने कहा था कि टेबल 25 याद करें। तो 25 1.10 है। तो 1.10 बॉदर नहीं करता ना बेटा, अच्छा, ठीक। ठीक है। तो 25 टाइम्स 11, तो 25 टाइम्स 10 इज 250, तो 25 और ऐड कर दें तो 275। 1 मार्क का क्वेश्चन था, खत्म। द डायग्राम शोज द ट्राइंगल ABD एंड ADC। अच्छा, ये रीडिंग वाला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कन्वर्ट 0.17 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मीटर टू सेंटीमीटर का स्केल लिखें। 1 मीटर किसके बराबर होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। किसी को नहीं याद तो बेटा प्रॉब्लम है, फिर याद कर लो। स्क्वायर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर होता है बेटा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अब वो कहता है 0.17 क्या होगा, खुशी में 0.17 यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा x, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा x से, x आएगा। 10,000 बेटा मल्टीप्लाई होगा 0.17 से, तो इसका मतलब है पॉइंट विल टेक 4 जंप्स टूवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब है 0.17। तो तैयबा बेटा 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, तो ये आ गया बेटा 1700। कैन आई से दैट? जी सर। तो 4 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 भी और क्वेश्चन 6 में रीड है। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आसान है। u इज इक्वल टू v, अब ये वेक्टर है, फ्रैक्शन नहीं। फाइंड u माइनस 2v। तो बेटा u क्या है, u है 3 माइनस 2 माइनस, अच्छा माइनस 2, और v क्या है बेटा, -12 और 5। अच्छा जी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस को बाहर छोड़ दें, 3 और -2, तो डबल ऑफ 12 इज -24 एंड डबल ऑफ 5 इज 10। चलें जी, नेक्स्ट इज, अब 3 माइनस इंटू -24 कर लो और नीचे लिखो -2 -10। तो माइनस माइनस क्या होता है खुशी, ये प्लस होता है। तो 3 + 24 कितना आता है बेटा, 27। एंड -2 -12 -10 इज -12, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -12, 2 मार्क के लिए। अब वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ v का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ v वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या है। अब v का वेक्टर देखो, v में x जो है वो -12 है, तो -12 होल स्क्वायर, नया ब्रैकेट में बंद करना, y स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट -12 होल स्क्वायर वुड बी +144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। तो स्क्वायर रूट 144 प्लस 25 इज 169 विच इज द आंसर इक्वल टू 13। कहा था कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि यू शुड बी मेमोराइजिंग फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स, ताकि 169 को और से देखो तो आपको आइडिया क्लियर हो जाए। जी जी अंडरस्टूड बेटा, सबको समझ आ रही है? जी सर। आगे यस चलते हैं जी। सर। क्वेश्चन नंबर 8 में रीड है, क्वेश्चन नंबर 9 में रीड नहीं है, तो बस सीक्वेंसेस हैं। 17 12 7 2 लिखा हुआ है, फाइंड T5। तो T4 तक 4 टर्म गिवन है, 5 टर्म देखनी है। पहले देख लो, नंबर्स को होवर करो। 17 12 7 2 क्या हो रहा है बेटा, -5 हो रहा है, यस और नो? सो 2 - 5 इज -3।
अब वो कहता है फाइंड टी एन व्हेन एडिशन or subtraction is the rule, you have to use the formula for the arithmetic sequence, which is an is equals to a1 plus n minus 1 into t. So the first term kya hai beta? First term is 17 plus n minus 1 and the difference is minus 5. Rule jo hai wo minus 5 hai. So 17 minus 5n plus 5. मैं माइनस का ख्याल रखना, पेपर में बहुत गलती करता है। -5 जब n से मल्टीप्लाई होगा -5n आएगा, और -5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आएगा। -5n को पहले कर देते हैं, +17 + 5 -5n + 22। अब यहाँ पे ये हो गया मेरा आंसर 2 मार्क के लिए। समझ आया बेटा सबको? हसन? ओके, गुड जी जॉब। सर। ओके अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट, कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर करना है कि आपने पेपर में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है लेकिन आंसर मिक्स नंबर में देना है। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, तो अगर लिखा हो कि मिक्स नंबर में दो तो मिक्स नंबर में ही देना। तो पहले जी इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 3 आएगा नीचे, यहाँ पे भी 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे रूल पता होना चाहिए, 3 2 = 6। जी बेटा सर एक मिनट लीव पर कर सकते हैं सर? यहाँ पे यस सर। ओके सर। ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें जी। ओके यहाँ पे डिनोमिनेटर्स मैंने एज इट इज 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब यहाँ पे रूल होता है 3 2 जार जी, 3 2 जार क्या होता है बेटा? 6 एंड 6 + 2 इज 8 6 + 2 इज 8। अच्छा जी, 3 2 जार 6 एंड 6 + 1 इज 7। ओके नाउ इट इज बिहेविंग लाइक द सिंपल फ्रैक्शन। अब आप इसके डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो या बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी। अगर डिनोमिनेटर कंपेयर करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी तरह करते होते हैं, तो राइट साइड के नंबर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट साइड के नंबर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 8 2 = 16, 2 3 = 6, 7 3 = 21, 2 3 = 6। डिनोमिनेटर इज सेम। 16 + 21 क्या आता है बेटा? तो 6 + 1 करें तो 7, और 1 + 2 इज 3, 37। अब मिक्स नंबर में लिखना है। मिक्स नंबर में लिखने के लिए 3 सर्कल्स बना लेने हैं। यहाँ पे आ गया बेटा 6। अब 6 टाइम्स व्हाट इज 37? 6 के टेबल में 37 नहीं आता। 6 6 = 36 एंड 36 + 1 इज 37। सो द फाइनल आंसर इज 6 × 1/6, 3 मार्क्स। क्वेश्चन 14 नॉट रीड है। 64 पावर 2/3 indices है। दिस 3 is the hint that this 64 is some cube number. So let's do that. We know that 4 cube is 64. मैंने कहा था कि याद करें, 3 3 cancel, 4 square is 16. So 16 is your final answer for 2 marks. Easy everybody? सबको समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। अच्छा, जहाँ पे समझ ना है माइक ऑन कर लिया करो अपना। जहाँ पे समझ आ रही हो तो बस इजी बैठे रहो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, याद रखो। सर ने कहा था कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इंडिसेस के रूल अप्लाई होते हैं, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म के दरमियान में तो हमने कॉमन आउट करना है। पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी इंडिसेस के रूल अप्लाई होंगे, तो हम एज इट इज लिख देंगे 7.1 × 2 × 10⁻⁻15 × 10⁻3। 7.1 का डबल क्या होता है? 7.1 को टाइम्स 2 करो, 14.2 आता है। मल्टीप्लाई विद 10, पावर ऐड होती हैं व्हेन बेसेस आर सेम। तो 14.2 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻15 सॉरी -12। ओके अब यहाँ पे जी 14.2 इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इस नंबर को होना चाहिए लेस देन 10। अब ये नंबर लेस देन 10 नहीं है, तो हमें ये पता है कि इसको नंबर को लेस देन 10 लिखने के लिए हमें पॉइंट को इधर लाना पड़ेगा। तो 1.42 हुआ, मल्टीप्लाई विद 10 पावर व्हाट, 10 पावर 1 लिख देंगे, और ये आ गया -12 ऊपर पुराने वाला ही। तो अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे पावर्स को ऐड करना है, तो आंसर में आएगा 1.42 मल्टीप्लाई विद 10 पावर। अच्छा 1 + -12 इज -11। तो ये हमारा 2 मार्क के लिए था फाइनल आंसर। जी ये क्लियर हुआ बेटा सबको? मैंने बहुत स्टेप वाइज करवाया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो 14.2 तक आ जाते हैं इसमें, लेकिन वो आखिर में आंसर आप 14.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 लिखोगे तो वो आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा, और क्वेश्चन के अगर 2 नंबर हैं तो आपको 1 मिलेगा। आपको दूसरा नंबर लेने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर या तो 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा हो लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 14.2 जो है वो 10 से बड़ा है।
अच्छा जी, सर ने कहा था कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी तो आपने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देख लें जी, दोनों के दरमियान में द रूल इज ऐड, रूल इज क्या है, इनको ऐड करना है। तो टेक कॉमन आउट, ऑलवेज टेक कॉमन आउट। और कॉमन क्या निकालना है, पावर ऑफ 10 निकालनी है, पावर ऑफ 10, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट हो जाए। मैं पावर ऑफ 10 को कॉमन निकालूंगा, 10 पावर 6, 10 पावर 7। कैन आई टेक 10 पावर 6 कॉमन? हाँ जी, क्या 10 पावर 6 कॉमन निकाल लें? दोनों के पास है। तो 5.2 के पास रह जाएगा, पहली ब्रैकेट में रह जाएगा एक 10, और दूसरी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि पूरा 10 पावर 6 इज आउट। नाउ इन मैथ्स में बॉडमास के अंदर यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। आपने मल्टीप्लिकेशन पहले कर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना पहले। तो 5.2 मल्टीप्लाई विद 10 इज 52 प्लस 5.2। बेटा 52 प्लस 5 इज व्हाट, 57.2 हो जाएगा ये। 57.2 multiply with 10 power 6. Ayla, 57.2 is what? It is greater than 10. Do you copy or not? Yes, So sir. let's convert this number. So it would be 5.72 multiply with 10 power 1. And this 10 power 6 is the previous one. Agree or not? As it is ये नीचे आ गया. Understood? Yes. Okay. So now let's write the final answer. 5.72 multiply with 10 power 7. 2 marks. Understood? ये दो नंबर, ये चार नंबर किसी के ज़ाया तो नहीं होंगे? Very good. Keep the spirits high. आगे चलते हैं जी। फाइंड द नंबर ऑफ रेगुलर साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन विद इंटीरियर एंगल 162। याद रखना है, सर ने कहा था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब है कि तमाम के तमाम इंटीरियर और एक्सटीरियर बराबर होंगे। अब अंडरस्टैंड करना एक चीज, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है हमारे पास इंटीरियर का, और इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई विद 180 डिवाइडेड बाय n। और एक फॉर्मूला है एक्सटीरियर का, वो है 360 बाय n। दोनों के फॉर्मूला में नंबर ऑफ साइड्स है, लेकिन इंटीरियर के फॉर्मूले में n जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें पता है, वी नो दैट द इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में इंटीरियर गिवन है तो मैं एक्सटीरियर निकालूंगा। तो एक्सटीरियर आएगा मेरे पास 180 माइनस 162। 180 में से 162 निकालो, 18 आता है। ठीक है आयला, अब मुझे पता है कि एक्सटीरियर के फॉर्मूले में बेटा 18 पुट कर देंगे और n निकाल लेंगे। तो n इधर जाएगा और 360 बाई 18 यहाँ पे आएगा। सो n इज इक्वल टू 360 बाई 18, तो 20 आता है जी। 20 नंबर ऑफ साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की। अब एक चीज़ हमेशा कंफ्यूजन रहती है, क्या नाम है आपका, रामीन? बेटा जी। दी formulas, interior angle, one interior angle, exterior angle, these two formulas can only be used if the shape is regular. If the shape is not regular, you cannot use it. Okay? जी सर। All angles would be different. तमाम के तमाम exterior angle different होंगे अगर regular नहीं है तो। ठीक है जी, चलें जी। क्वेश्चन 14 में रीड है, थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स टी ऑन टू ए। अब एक चीज देखें जरा, स्पेसिमन में हमने ओ लेवल्स के पेपर में भी देखा था, ओ लेवल्स के पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन थी स्पेसिमेन में, जरा याद करो यार, थी नहीं थी ना? और सर मुझे तो याद नहीं है। आईजीसीएसई में आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर हो सकता है कि पेपर 2 में भी दे दे आईजीसीएसई वालों को ट्रांसफॉर्मेशन, और पेपर 4 में भी, और ओ लेवल्स वाले भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के एक एक पार्ट एक्सपीरियंस करें। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के लिए दिया और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे नंबर बनते हैं, इनलार्जमेंट नहीं है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। कहता है डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स टी ऑन टू ए। मार्क्स देखो यार, 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए या हमेशा रोटेशन आती है या इनलार्जमेंट आती है। ये इनलार्जमेंट तो है नहीं, अब वो जाहिर सी बात है कि ये रोटेशन ही है। टी ऑन टू ए, तो यू वी कैन सी दैट कि टी ऑन टू ए, सो साइम कैन यू सी वन थिंग दैट दिस लाइन is on the right side of the shape. So this is clockwise rotation. Agree or not? 90 degrees clockwise rotation. Yes. So it is rotation 90 degrees clockwise and the center is 1 mark है सेंटर लिखने का। सेंटर हमेशा कोऑर्डिनेट होता है, ड्रॉ एल, आपने एल ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे देख लें बेटा, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। एग्री और नॉट? सो आई कैन ड्रॉ एल वेरी इजीली। क्या मैं यहाँ पे एल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो ये तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री की रोटेशन। तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो सर 4 सेंटर। जी बेटा, सर वो दूसरी तरफ भी एल ड्रॉ हो सकता है, तो ये क्यों?
कैसे? ए से नीचे करें और फिर राइट करें। अच्छा जी, मैं आपके सामने बनाता हूँ, जरा देखिएगा प्लीज। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे जी साइम कहता है कि सर यहाँ पे भी एल ड्रॉ होता है। जी बिल्कुल होता है, एल ड्रॉ होता है, बिल्कुल होता है। अब साइम जरा एक चीज नोट करें। साइम नोट कर रहे हैं? जी जी सर। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे एक चीज नोट करें कि मुझे इस शेप को लेके जाना है, 90 डिग्रीज रोटेट करना है। आपके इस सेंटर के मुताबिक क्या ये ट्राइंगल इधर ही आएगा? आपके इस सेंटर के मुताबिक क्या ये ट्राइंगल इधर आएगा? हेलो। जी नहीं जी, सर। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बताइएगा। क्या? क्या आपकी इस रोटेशन के मुताबिक अगर आप इस पॉइंट के ऊपर, साइम अगर आप इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख लो, एग्री, और जी इस जी, शेप को ड्रॉ करके जब आप रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज, क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। 90 डिग्री जब आप इसको रोटेट करेंगे, इस जगह पे सेंटर रखे, इस जगह पे सेंटर रखे, आपका ये पॉइंट इधर आएगा जरूर, एग्री। जी। लेकिन क्या होगा? लेकिन क्या इस होगा? इस शेप को मैच नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, वहां अच्छा पे अच्छा। क्यों मैच कर रहा था? वहां पे क्यों मैच कर रहा था साइम? जरा ये भी देख लें, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है साइम ने। अगर मेरे पास, इफ दिस इज माय सेंटर, तो साइम यू कैन सी दैट दिस इज वन बॉक्स, कैन यू सी दैट? And Saim, this is also corresponding. So see, this is also 2 box. Can you see that? Saim, आवाज आ रही है? And Ramin, this is my third point. So if I connect this one with this one and this one with this one, see, this is also 90 degrees. Can you see that? जी सर। तो हमें पहले से ही पता लग जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो साइम ने शुरू में ये पॉइंट रेज किया, तो मैंने खुद ही आइडिया लगा लिया था कि यार ओके, ये 90 डिग्रीज की रोटेशन है, ओके, और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो अगर आप इस लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 डिग्रीज के ऊपर, तो ये मेरा बेटा एक बात मुझे बताएं साइम, कि ये जब क्लॉकवाइज आप इस लाइन को 90 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे तो ये लाइन तो नीचे जाएगी। अंडरस्टूड? दैट वाज द मिस्टेक। सो हमारा जो सेंटर बनता था वो बनता था 4 और 3 सेंटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में भी रीड है, लेकिन ये इतना रीड नहीं होता। अ स्टूडेंट मेजर्स द हाइट ऑफ 400 प्लांट्स। अंडरलाइन करना जरूरी है, ये भूलना नहीं है, 400 प्लांट्स हैं। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज द रिजल्ट। फाइंड द मीडियन। मीडियन इज व्हाट? हाफ ऑफ 400। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है, तो 200 वैल्यू। तो 200 वैल्यू क्या है बेटा? ये है आपके पास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिट करते हैं ग्राफ के साथ और नीचे आंसर देखते हैं, तो ये आ रहा है 30। ये आ रहा है 30। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ओके, तो ये बात अपर क्वार्टाइल क्या होती है? थ्री बाई जी, फोर वेरी गुड, इट्स 3/4, 75%। तो 3/4 ऑफ 400, तो 3/4 ऑफ 400, 4 1s आर 4 एंड दिस इज 100। तो ये हो गया बेटा 300 वैल्यू। ओके, एंड लोअर क्वार्टाइल इज 1/4, ये 25% होता है। 1/4 ऑफ 400, तो ये आएगा 100 वैल्यू। सो रामीन, पेपर 1 में 3/4 और 1/4 इस्तेमाल करना अच्छा, क्योंकि कटिंग आसान है वो परसेंटेज से कन्वर्ट करने में, ठीक है। जी सर। 3/4 आता है 300 पे, तो 300 को हिट करना है बेटा। 300 वुड बी बिटवीन 280 टू 320। हमें ये देखना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या इसके दरमियान में ये आता है कि नहीं, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके दरमियान में बेटा टोटल 40 वैल्यूज़ हैं। तो एवरी बॉक्स हैज़ 40 वैल्यूज़। तो इसका मतलब है 5 बॉक्सेज हैं, तो 40 / 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 8। तो हमें ज़रा यहाँ पे कंफर्म करना भी ज़रूरी है। तो 288, और ये हो जाएगा बेटा 288। 288 प्लस 8 इज व्हाट? 96। और 296 का +8 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 304। तो इसका मतलब है कि 300 इसके बिल्कुल दरमियान में है। तो हमें ये आइडिया यहाँ पे क्लियर हुआ कि द हाफ ऑफ दिस इज 300। तो ये हो गया जी हाफ। अच्छा जी, यहाँ पे ये लिखने के बाद हम ना, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा?
सो दैट इज 32, 34, 36, 37। अच्छा यहाँ पे हमने तो अभी वो मैराथन में बैठी हुई है, तो दिस इज 3.7 ही 37। सो दिस इज 37, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपर क्वार्टाइल इज 37 माइनस लोअर क्वार्टाइल 100 वैल्यू है। सो हसन 100 होगा 80 और 120 के दरमियान में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, गौर से देखनी है। अच्छा बेटा, तो 10, 12, 14, 16, 17 आ रही है। 37 माइनस 17, तो 37 माइनस 17 इज 20। तो यहाँ पे याद रखिए रामीन, ये देख रही हैं क्या लिखा हुआ है? जी सर। एस्टिमेट, इट इज एस्टिमेट। ठीक है, तो आपके आंसर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं उस केस में when you are drawing the cumulative frequency diagram. But if the examiner has given you the diagram like this question, you have to give the accurate answers. Okay? जी सर। 80th percentile. 80th percentile means 80 by 100 and the total frequency is 400. So I can cancel 0, 0, 0, 0. 8, 4, the 32, so it would be 320th value. So 320th value would be on y-axis. So let's hit the graph. Be careful while plotting the values. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट किया कि तमाम के तमाम वैल्यूज बिल्कुल हाफ हाफ में आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि बच्चे को कंफ्यूजन हो। तो 40 से आधा बॉक्स पीछे 39 होगा, तो 39 आ गया। द नंबर ऑफ द प्लांट्स हाइट ग्रेटर देन 60, हाइट ग्रेटर देन 60, हाइट ग्रेटर देन 60 आर these plants, so these would be the last ones. ओके, ये लास्ट ones होंगे। तो हाइट ग्रेटर देन 60 कितने हैं हम जरा यहाँ पे देखेंगे। सो साइम बेटा 60 को हिट करेंगे ग्राफ के साथ रिवर्स वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हिट हुआ ये यहाँ पे। ओके रामीन, हमें निकाला था कि एक बॉक्स 8 के बराबर है, तो कैन आई से दैट दिस इज 364? जी सर। यस और नो? आधा बॉक्स है ना, तो 364 है, तो 400 माइनस 364, 400, 400 माइनस 364 इज 36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 मार्क्स। चलें जी, स्टार्ट्स खत्म हो गया। कोशिश करें एक दो अच्छे सवाल प्रैक्टिस करो, ये पेपर में आएगा यार, तो ये इसको प्रैक्टिस करो। आगे चलें जी, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का फॉर्मूला है बेटा एफ डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बाय क्लास इंटरवल। तो पहला वाला बना हुआ है, तो पहली वाले की एफ डी यहाँ पर है 6। नाउ हम सब की निकालना है, तो क्लास इंटरवल ऊपर निकालने पहले, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल्स अगर आप लोग देखें पूरे इसके अंदर, तो यू विल सी वन थिंग कि क्लास इंटरवल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी मुईद, अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है। तो मुईद बेटा पहले की तो एफ डी गिवन है। बेटा सेकंड की क्लास इंटरवल कितनी है, 30 माइनस 20 कितना आता है, 10। थर्ड की कितनी है, 40 माइनस 30 इज 10। लास्ट की कितनी है, 40, 80 माइनस 40 इज 40। बेटा क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिड पॉइंट इस्तेमाल होता है मीन में, और क्लास इंटरवल इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हिस्टोग्राम के अंदर। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, 80 बाई 10 इज 8, 124 बाई 10 इज 12.4 एंड 76 डिवाइड बाय 40। अब ये मुश्किल लग रहा है ना, ठीक है, आप पहले इसको हाफ करो, यही ट्रिकी है खाली। तो हाफ कर लो 76 डिवाइड बाई 40। तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 3 आता है, या 2 3 6 आता है, तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 1 हो गया। 2 8 16, 38 एंड दैट इज 20। अब 38 को हाफ करो, हाफ ऑफ 38 इज 19, 19 डिवाइड बाई 10। अब हाफ करने की जरूरत नहीं, 19 बाई 10 का मतलब है मुईद 1.9, ठीक है बेटा। अब चलिए जी, 0 to 20 का पिलर बना हुआ है, 20 to 30 इज 8, तो 20 to 30 इज 8। तो मुईद बेटा यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, अंडरस्टूड अरसलान? 30 to 40 इज 12.4, 12.4, तो बेटा ये 12 है। अब 12.4 फिर ढूंढना पड़ेगा, तो बेटा 12.4 ढूंढना पड़ेगा। तो 12, अब ये फिर 5 बॉक्सेज हैं, तो 5 बॉक्सेज हैं और 2 वैल्यूज हैं, तो 2 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 2 डिवाइड बाई 5 आता है 0.4। इसका मतलब है कि 12.4 एक बॉक्स ऊपर ही होगा, 12.4। तो ये 30 to 40 था, तो 30 to 40 आइला समझ आ रही है बेटा कि बॉक्स मैंने कैसे कलेक्ट किया। एंड द लास्ट वन इज 40 to 80 इज 1.9, तो 40 to 80 इज 1.9, तो 1.92 से बस थोड़ा सा आधा नीचे, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा 40 to 80 1.9। अब मैं यहाँ पे 1.9 भी लिख दूंगा, मैं यहाँ पे एग्जामिनर को लिख दूंगा 12.4, और मैं यहाँ पे एग्जामिनर को लिख दूंगा 8। कि ये मैंने बना दिया। आगे चलते हैं, सर्कल का क्वेश्चन में रीड होता है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 फंक्शंस नहीं स्किप करने, ओ लेवल्स वालों के पेपर में पहली दफा हैं तो काइंडली प्लीज जरा गौर करें क्वेश्चन के ऊपर। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, तीन फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या कहता है, एफ में -3 पुट करो, -3 इज इनपुट, कहाँ पे इनपुट, इसमें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, आपने x की जगह पे रिप्लेस करना है मुईद -3। बेटा ये गलती नहीं करनी, यही वो नंबर है जहाँ पे आपका पेपर पास हो सकता है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 3 = 6, तो 3 + 6 इज 9, तो आंसर 9 आ रहा है। बेटा यहाँ पे कोई गलती हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, अच्छा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अच्छा, देन फिर कहता है फाइंड जी एफ -3। मेरा बेटा यहाँ पे देखिएगा f -3 क्या है, f -3, वी गॉट द आइडिया मुईद कि f -3 का आंसर हमारे पास 9 आया है, तो क्या मैं f -3 की जगह पे g9 लिख सकता हूँ। अब आपने 9 पुट करना है g के फंक्शन में, g का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है 2x + 3, तो आप लिखेंगे 2 × 9 + 3, 2 9 = 18, 18 + 3 इज 21, तो ये 21 समझ आया बेटा सबको। रानिया, रामीन, जारिया, नायाब, मनाहिल, जवेरिया, आदि, असफहान, सर आलिया। इसमें आपने 9 क्यों लिखा है? बेटा यहाँ पे हमने f -3 ऑलरेडी पुट किया था ना, पहले फाइंड किया ना पिछले जी पार्ट जी में, तो उसका आंसर 9 आया था ना, हाँ जी। तो मैंने f -3 की जगह पे डायरेक्ट 9 लिख दिया इधर। देखो ना, मैंने g लिखा और डायरेक्ट 9 लिखा, अच्छा इसका ठीक मतलब है कि ठीक 9 इज द इनपुट इन g, तो यहाँ पे x ठीक की जगह पे 9 डाल दिया। ठीक। अच्छा, f इनवर्स ऑफ x, बहुत कॉमन मिस्टेक्स पे बात करूंगा, ये बहुत आसान सवाल है, पेपर में हर साल आता है, इस दफा भी आएगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा तो 2 नंबर का f इनवर्स ऑफ x पेपर में होगा, और सेम f इनवर्स ऑफ x आएगा। देखना, पहला स्टेप, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, पहले आपने f ऑफ x को y के लिखना है, तो y इज इक्वल्स टू 3 - 2x, मेक x द सब्जेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं y -3 इज इक्वल्स टू -2x, मेक x द सब्जेक्ट, -2 को नीचे ले आएंगे, y -3 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू x, लास्ट स्टेप है रिप्लेस x विद y, तो ये हो जाएगा बेटा x -3 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू y, और बच्चे कहते हैं कि ये आंसर है और आंसर लाइन पे लिख देते हैं और एक नंबर कट जाता है, पता है क्यों? The reason is in math you cannot leave a negative sign in the denominator, आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कभी भी नहीं छोड़ सकते, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -x + 3 डिवाइडेड बाय 2, अब हो गया ये आपका फाइनल आंसर इनवर्स फंक्शन का, तो आप लिख दोगे -x + 3 डिवाइडेड बाय 2, अब आपको मिलेंगे 2 नंबर पूरे। अगर डिनोमिनेटर में -2 है और आपने अपना आंसर यहाँ पे छोड़ा हुआ है तो आपके लिए एक नंबर कटेगा। मेरी सजेशन ये है कि जब यहाँ पे आपने y के इक्वल पुट करो और आप राइट साइड पे देखो कि x अगर नेगेटिव है तो आप -2x को इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव, मैंने सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन अलजेब्रा के अंदर हर टाइम कहता हूँ कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है g(x) is 7, मतलब पहले g(x) क्या चीज है, तो बेटा वो कहता है कि पुट g इन g of x, तो बेटा g(x) का मतलब क्या है अनिया, ये है बेटा g of x बराबर है 2x + 3 के, so gx is the input, this is your input, so I will put gx again in place of x like this, but on the right side I will put the value of gx, मैं right side पे gx की वैल्यू डालूंगा, तो right side पे gx की वैल्यू क्या है बेटा, वो है 2x + 3, so मुईद 2 ब्रैकेट 2x + 3 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन में गिवन है मुईद, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दैट gx is 7, तो क्या मैं लेफ्ट साइड की जगह पे 7 लिख दूं, तो 7 is equals to 2 2s are 4x plus 2 3s are 6 plus 3, तो 7 is equals to 4x plus 9, तो 4x ओके यहाँ पे गलती हो सकती है तो इसलिए छोड़ देते हैं, 7 - 9 इज इक्वल टू 4x, देखा x मेरा पॉजिटिव था, राइट साइड पे था, मैं इसको नहीं लाया यहाँ पे, मैं नंबर को ले आया, 7 - 9 इज -2 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड, 4 4 हुए कैंसिल, बेटा x इज इक्वल टू -1/2, तो x की वैल्यू आ रही है -1/2 3 मार्क्स के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अच्छा, फिर वो कहता है h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5, अब बच्चों को यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की कमी होती है। h ऑफ x बेटा 2 पावर x के बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है, देख लें जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया।
अच्छा जी, सब और करें बेटा, ये पेपर में ट्रिकी पॉइंट है. अरोम, यू कैन सी वन थिंग, examiner is asking find out the value of x when h inverse of x is equals to 5. Okay, I can see one thing, I cannot take the inverse of this function with a typical method because x is in the power. How will I make x the subject? Here remember one thing, you can see one thing, that h inverse of x is equals to 5. Hania, we know that in indices we studied that we can make the power positive by sending it to the denominator. Agree or not? Now h will go there and will be written with the 5. It means that x is equals to h5. So याद रखें, h के अंदर 5 put करें. So h5 would be 2 power 5. And 2 power 5 is what? 32. Am I right or wrong? 2 power 5 is 32. 2 power 5 32 क्यों आता है? 5 times 2 को multiply करें. 4, 8, 16, 32. Yeah, it's 32. चलें जी, आगे चलते हैं जी. सिंप्लीफाई सर्ड्स. बेटा मशहूर ज़माना क्वेश्चन है ये, पेपर में ज़रूर आएगा. 4 नंबर होंगे सर्ड्स के. तो मैंने आपको बताया 200 में 2 मार्क्स का आएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और 4 मार्क्स का सर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलेगा. और यहाँ पे 2 + 2 4 मार्क्स हैं, देख लें इसके भी. बेटा स्क्वायर रूट 32. अच्छा जी, जिसको नहीं आता वो और करे. स्क्वायर रूट 32, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है जी. अच्छा, दोनों 2 से स्टार्ट होंगे. मुईद 16, 8, 2, 4, 2 और 1. तो बेटा मैं लिख सकता हूँ मुईद इसको स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्क्वायर टाइम्स 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना तो 2 2 के पेयर्स बनाते हैं मुईद. अच्छा 98. अब 98 को क्या करेंगे, इसको भी हाफ करें. 49, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. इसकी भी कहानी हुई ख़त्म. ये हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई विथ 7 स्क्वायर. तो स्क्वायर वाले नंबर पहले लिखा करो. तो मैंने लिख दिया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही बात है. अब स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करें. स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2. जिसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है वो दोनों काट दें. ओके, 2 2s are 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2. तो 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 लाइक टर्म्स. तो 4 + 7 is 11 स्क्वायर रूट 2 इज द फाइनल आंसर इफ यू ऐड देम. ठीक है जी. अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होता, वो ज़रा हम कह सकते हैं जो कि हमारे बटरफ्लाइज हैं. तो बेटा बटरफ्लाइज ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट 98. तो इट्स अ शॉर्टकट फॉर द बटरफ्लाइज ओनली. ठीक है. थिंक ऑफ अ स्क्वायर नंबर and times it with something to get 32. So the greater number I can think is 16 times 2 is 32. So I can write square root 16 times 2. 98 is the double of 49. So I can write straight away 49 times 2. Square root 16 is 4. So it is 4 square root 2, and square root 49 is 7. So it is 7 square root 2. Again, you got the same answer, 11 square root 2. This is a shortcut. Think of a square number, the greater square number, and multiply with a number to get the same number. Then तो ये मेथड करें तो ज़्यादा बेहतर है, गलती नहीं होती. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1. ऑलवेज अ टिपिकल थिंग ही मल्टीप्लाई करें. स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1. मल्टीप्लिकेशन है ऊपर, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ. नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ, तो वही आएगा. स्क्वायर रूट कटा तो आएगा 2 माइनस 1. तो आंसर आएगा बेटा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 1 इज 1. यस और नो एवरीबडी? एग्री? अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? यस सर. ऑलराइट, तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए. नाउ देखें जी, रीडिंग नहीं है. y इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी, तो k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x. ओके, y की जगह पे 8 लिखें और स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे हम लिख देंगे 4. क्वेश्चन में गिवन है. स्क्वायर रूट 4 इज 2, तो 2 वहाँ पे जाएगा, तो 8 2s are 16. सो k इज इक्वल्स टू 16. सो अरसलान, हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 16 बाय स्क्वायर रूट x. फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 49. तो y इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49. स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज बेटा 7, तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 7. तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन. इसमें रीड है
अच्छा शो दैट भी इसमें रीड नहीं है। अच्छा ये देखें जी, अब ये रीड नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये याद रखें IGCSE वालों, आप लोगों को ये टेबल याद करना पड़ता है, और मैं हर दफ़ा हर क्वेश्चन के साथ टेबल सिखाने की कोशिश करता हूँ। बेटा इंशाल्लाह ताला मॉक इज़ वेरी नियर बाय, और इंशाल्लाह आप लोगों का जो मॉक एग्ज़ाम है आई एम प्रिपेयरिंग दैट, और आई एम प्रिपेयरिंग कि यार मॉक एग्ज़ाम जो है आप लोग अटेम्प्ट करो थोड़ा सा पेपर से 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो अभी पेपर में ज़रा दिन है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग अ पेपर एंड दैट पेपर विल हैव, बेटा लिसन टू मी, आई एम मेकिंग अ पेपर एंड दैट पेपर विल नॉट बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का नहीं होगा पेपर, ठीक है। पेपर के मार्क्स ज़रा ज़्यादा होंगे, एंड आई विल इंक्लूड एवरी चैप्टर ऑफ द सिलेबस इन ऑर्डर टू टेस्ट यू, एंड इन ऑर्डर टू दैट यू शुड टेस्ट योर सेल्फ that whether you are prepared for that particular question or not, ठीक है। I am going to design a question paper in which I should include at least 100 questions from paper 2 and from paper 4, or calculator or non-calculator, which are usually the part of syllabus and which are usually the part of coming exam, ठीक है। सो ये वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिनको वो 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, तो वो समझ लें कि बस वो लोग इंशाल्लाह पेपर क्लियर कर सकते हैं। चलें जी, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा हमें टेबल याद करना होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इट इज़ हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज़ बेटा बेस अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, एंड वी नो दैट वी हैव cos 30। cos 30 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है और टेबल में पता होती है। मैंने कहा था कि टेबल याद करो, इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन आपने आराम से पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड ज़रूर कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं ऊपर लिख देता हूँ थीटास, ऊपर मैंने लिख दिया थीटास, इधर मैंने लिख दिया 0, इधर मैंने लिख दिया 30, इधर मैंने लिख दिया 45, इधर मैंने लिख दिया 60, और इधर मैंने लिख दिया 90। अब यहाँ पे हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, और यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यूज़ जो हैं वो यूजुअली पेपर में टेस्ट होंगी एग्जैक्ट वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, आपने यहाँ पे लिखना कैसे है, आपने इधर से स्टार्ट लेना है 0 1 2 3 4। अब नीचे जब कॉस लिखो तो आपने ऐसे स्टार्ट लेना है 4 3 2 1 0। स्क्वायर रूट ले लें सबके ऊपर, सबके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। रामीन सीख रही हो कि नहीं? जी सर ये हमारा भी है। सबको 2 पे डिवाइड कर दो, एंड डिवाइड ऑल बाय 2। सब नंबर्स को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। तो रामीन आपके पास टेबल बन गया है। आपके पेपर में O लेवल स्टूडेंट्स विल गेट द वैल्यू इन द पेपर, ठीक है। जी सर। ठीक है, O लेवल स्टूडेंट के अगर पेपर में ये आया हुआ है तो वहाँ पे लिखा होगा cos 30 की भी वैल्यू गिवन होगी, sin 30 भी गिवन होगा, और tangent 30 भी गिवन होगा। IGCSE वालों को याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, cos 30 किसके बराबर है बेटा? cos 30 बराबर है स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है। तो हम लोग cos 30 की जगह पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 8/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 इज द फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर हुआ आपका? जी बच्चा। सर मैंने तो कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था सर। आप तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पेपर में वैल्यू गिवन नहीं थी ना, तो मैंने आपको वहाँ पे वॉइस नोट किया था कि ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन आपने किया है तो आपने cos 30 किया। आपको पेपर में वैल्यू गिवन होगी कि cos 30 की क्या वैल्यू है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 23, राइट दिस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। सो बेटा डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो राइट साइड को लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 मल्टीप्लाई x-4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा इस कांस्टेंट के बाद लिखो x+3, और यहाँ पे भी लिख दो x+3, ठीक है जी। डिनोमिनेटर हो गए सेम, ठीक है जी, x+3 और x-4। अच्छा, बटरफ्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट आपने नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है एज इट इज, माइनस लगाना है दरमियान में, 3 को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ, देखो वही लिखा हुआ है जो ऊपर आया हुआ है, और 4 को मल्टीप्लाई करना है x-4, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये हो गया बेटा 3x+9 इज इक्वल -4x+16 डिवाइडेड बाय x+3 एंड x-4। डोंट एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड नहीं करना है, एज इट इज लिखना।
अरेंज कर लो बेटा। 3x माइनस 4x प्लस 9 प्लस 16। यहाँ पे बेटा सुस्ती नहीं करना यार, बस छोड़ो माना कौन करे ये करें वो करें, नो सुस्ती नहीं करनी। 3 माइनस 4x इज माइनस x और 9 प्लस 16 इज 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x माइनस 4, 3 मार्क्स। चलें जी आगे चलते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर टर्निंग पॉइंट आ गया है, तो अभी यहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगा, तो काइंडली जिसको नहीं आता तो ज़रा और से ज़रूर देख लें यार। अच्छा जी, क्लोज द फर्स्ट टू इन ब्रैकेट्स, पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर लें। तो आप लिख दें जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ओके, वी नो दैट दिस इज माई a स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b वुड बी 2, तो 2 2s are 4, तो 2, तो ऐड 2 स्क्वायर प्लस 7 एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया जी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा जी, अच्छा टर्निंग पॉइंट बताना है बेटा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, टर्निंग पॉइंट का फॉर्मेट था x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b, और टर्निंग पॉइंट होता है माइनस ए प्लस बी। आंसर क्या होगा जी, कौन बताएगा अभी जी, कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? टर्निंग पॉइंट क्या है? -2 नहीं सर 2। 2 और व्हाट? 2 और 3 लिखा हुआ है लाले, बी के ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है ना। स्केच कैसे करेंगे इसको? हाउ टू स्केच इट? स्केच कैसे करेंगे? स्केचिंग के जरिए देख लो जरा कि कैसे क्लियर हो सकता है कॉन्सेप्ट आपका। रामीन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो +7 है, एग्री? जी सर। और आपके पास टर्निंग पॉइंट, आपने अगर आपने इसको स्केच करना है तो ये इस तरीके का यू बनेगा, एग्री? एग्री, ऐसा यू बनेगा, एग्री? जी सर। ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है वाई इंटरसेप्ट बन रहा है +7 और टर्निंग पॉइंट आपके पास बन रहा है 2,3, तो ये इसकी स्केच है। चलें जी, ये क्वेश्चन 25 में रीड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 26 में भी रीड है क्वेश्चन, इसका एक्सपैंड देख लो खाली। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x माइनस 3। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो सेकंड ब्रैकेट से, फिर प्लस 2x को मल्टीप्लाई करो सेकंड ब्रैकेट से। ये नहीं कि साथ साथ करते जाओ और पूरा फड़फड़ा बना लो, फिर इसमें बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं आप लोग। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो ये होगा जी, ये हमने किया बेटा ओनली रीड पार्ट। तो लेट्स सी जरा, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं पढ़े, लेट्स सी हाउ मच वी स्कोर्ड, और बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 22 plus 3 is 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 प्लस 3 64 7:18 पे हमने पेपर स्टार्ट किया था, 8:01 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोस 42 मिनट्स हम लोगों ने तकरीबन 63 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, और हमें तकरीबन कितना टाइम लगा? हमें 42 मिनट्स लगे हैं। इसका मतलब है बीच में मैं आपको पढ़ा भी रहा था, तो अभी अगर हम बीच में अगर मैं पढ़ा ना रहा होता तो ये 42 मिनट से भी बहुत कम टाइम लग जाता। मैं बोल रहा था, एक्सप्लेन कर रहे थे, फालतू की चीज़ें डिस्कस हो रही थी, एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस हुए बीच में। इसका मतलब क्या है आप याद रखें, एग्जाम में ये जो नॉन रीड पार्ट, ये नॉन जस्ट रीड पार्ट वाला जो पोर्शन है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर अंदर। इसका मतलब है कि 50 to 60 मार्क्स का पेपर जो है आप शुरू के 30 मिनट्स में कर सकते हो। बाकी के जो पार्ट्स रह जाएं उसके लिए आपके पास पेपर में तकरीबन 70% टाइम पड़ा होगा। वो 70% टाइम आपने यूटिलाइज करना है अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के साथ। बाकी इंशाल्लाह सी यू टुमारो। कल हम लोग कल की क्लास में इस पेपर को ख़त्म करेंगे। कल हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे स्पेसिमेन वाला जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट डी सर नहीं समझ रही। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट डी सर, इसमें सर मेरा इंटरनेट सर डिस्कनेक्ट हुआ था सर।
बेटा 18 पार्ट डी देखो वो क्या कह रहा है, एच इनवर्स ऑफ एक्स इज 5, ठीक है मेरा बेटा। यस सर। अच्छा, तो एच ऑफ एक्स 2 पावर एक्स के बराबर है ना, यस बराबर। सर। तो अगर मैं इसका इनवर्स लूं तो आई मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब x को सब्जेक्ट कैसे बनाए, नहीं बना सकते ना। नो सर। तो हमने ये लिखा h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5। इंडेक्सेस में पढ़ा था ना कि h इनवर्स को नीचे लेके जाएंगे तो h बन जाएगा, पढ़ा था कि नहीं। यस सर। ये h इधर जाके h5 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। h5 का मतलब है ना कि h में x की जगह पे 5 डाल दो। ओके। यस सर। सर अब तो ये तो हम, सर उधर भी सर मतलब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सर। सर तो उधर भी डायरेक्ट 5 डाल सकते हैं सर। देखो ये तो मैंने आपको समझाया है ना पहली बात, कि ये यस सर। यहाँ पे है एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते थे x इज इक्वल टू h5, समझ आई। यस सर। ये डायरेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या मतलब हुआ। ओके। ठीक है, यस सर। चलो भाई अपना बहुत ख्याल रखो, हैव अ गुड थैंक यू डे, सर। अल्लाह दोबारा हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।